Recording in progress. Namaskar, myself Dr. Deepti Bish, Professor, Department of Kai Chikitsa, Faculty of Ayurvedic Sciences, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. In today's session for class BMS 4th year, we are going to discuss the topic Jwar. So, before we start, a small introduction. As we know, Jwar is considered as most important among all diseases as it afflicts Sharir, Indriya and Manas, as said by all the Acharyas. According to Acharya Charak, Jwar happens since the birth of an individual and at the time of their death also. Samprapti, all of you are aware of the Samprapti. Sanstrishta Sannipatita Pratikva Kupitamala Rasaksham Dhatum Anvetyam Paktim Sthan Anirasya Cha Sen Ushmana Kev Tatva Deho Ushmano Balam Srotansi Ruduva Samprapta Kevalam Deham Ulbana Santapam Adhikam Dehe Janyanti Naristada Bhavatya Ushna Sarvango Jar Sen Cha Uchyate. And according to Madhav Nidan, Mithya Ahar Vihara Abhyam Dosha Amashaya Shraya Bahirnirasya Koishtagani Jarada Rasanuga. So these are the Samprapti which said that intake of Mithya Ahar Vihar can lead to indigestion or Mandagani, and this during Agni when goes out of its place can cause Jara. What happens? Aggravated doshas, Vat, Pitta and Kapha after the Nidan Sevan can individually or either in combination of 2 or 3 cause dosh sanchaya in Amashaya Gat. Then this Prakupit dosh when combined with Ras Dhatu and there is Sarva Sharir Gaman. Due to this, there is dislodgement of Jatravni from its own place and obstruction of Srotas occurs. Srotas which are involved are Svedva Srotas and Rasva Srotas. Then these dosh is spread all over the body and they produce Santap, both Mansik Santap and Sharirik Santap. If we talk about the classification of Jwara, Jwara is classified into various types. Some of the important types are according to character, niche which are of 7 types and Agantush which are of 4 types, that is Abhighatak, Abhishangaj, Abhicharak and Abhishapaj. According to nature, Jwara is again divided into 6 pairs. First one is Sharirik Mansik, second is Saumya Agnay, third pair is Antarved and Bahirved Jwara, fourth pair Prakrit and Vakrit, fifth pair is Sadhya Sadhya and then Sam and Niyam. So all according to nature of the Jwar type, Jwar can be divided into these 6 forms. According to location, Jwar is of 7 types. According to Dhatugat Sthan, that is Raktagat, Rasagat, Mansagat, Medogat, Asthigat, Madhyagat, Evam Shukragat Jwar. According to the strength, weakness and time duration of dosh vikriti, Visham Jwar is considered into 5 types. These are Santat Jwar, Satat Jwar, Anadishka Jwar, Rityak Jwar and Chaturdhak Jwar. Now Purvrupa of Jwar, as you know, there is Alasya or letharginess, Nayan Asray, that means excessive lacrimation, Jambha, yawning, then Gauravam, heaviness in body, Klam, that is physical and mental fatigue, Jalan, Atap, Vayu, and Ambu Bhakti Desha, that means loss of appetite, feeling of hotness in body. Abhipaka, there is indigestion of food. Varasya is there, that is aruchi or anorexia. Alpashit Vikrati, that means there is slight change in conduct of patient. Classical features as told by Acharya Charak and Shushruta are Santap, that is Manasik and Sharirik, Aruchi, Krishna, Angamar and Hridaya Retha.
Almost in every type of jars, according to dosha adhikya, according to the conditions of vata, pitta and kapha, these symptoms occur accordingly. Now Chikitsa Siddhant, which is the important part which we have to discuss. As you know, the Chikitsa Siddhant told by Acharya Charak is simple. Langhanam Swedanam Kalo Yavagu Tiktiko Rasa Pachananya Vipakvanam Doshanam Sarune Jara. So in case when jar is mild or in very early stage, the things we have to follow are Langhan Karm, Swedan Karm, then Kal, Yavagu, Pittaras and digestive enhancers for अविपक्व दोषा. तो लंघन जैसा कि आप लोग समझते हैं, लंघन जिसमें आम दोष का पाचन किया जाता है. लंघन कराते समय जर की पूरी और रोगी के बल और अबल को ध्यान में रखते हुए लंघन कराना चाहिए. लंघन का निषेध कुछ अवस्थाओं में माना गया है, जैसे आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि यदि वातिक ज्वर हो, धातुक्षय ज्वर हो तथा मानसिक ज्वर हो, वहां पर लंघन का निषेध बताया गया है और लंघन काल की जो मर्यादा बताई गई है वो 7 दिन की बताई गई है. उसी तरह से श्रम से पीड़ित, गर्भिणी, बाल, वृद्ध, दुर्बल एवं भय आक्रांत रोगियों में लंघन नहीं कराना चाहिए. लंघन से लाभ क्या क्या होते हैं? लंघन करने से दोषों का नाश होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, शरीर में लघुता उत्पन्न होती है, क्षुधा की वृद्धि होती है. इसके अतिरिक्त भोजन के प्रति रुचि, अन्न का पाचन, बल और ओज की वृद्धि होती है. इसलिए हमें नव ज्वर में या तरुण ज्वर में लंघन कराना चाहिए. इसके अतिरिक्त नव ज्वर में जो नहीं करना चाहिए उसमें कुछ जो विषय चरक में बताए हैं वो है दिवाशयन, स्नान, अभियम, अन्न सेवन, मैथुन सेवन, क्रोध, तीव्र या पूर्वी हवा का सेवन, अत्यधिक व्यायाम करना एवं कषाय रस वाले द्रव्यों का प्रयोग. तो नव ज्वर में या तरुण ज्वर में ये त्याज्य बताए गए हैं, अपथ्य बताया गया है. उसके पश्चात दूसरा चिकित्सा सिद्धांत है स्वेदन क्रम. जैसे कि हम जानते हैं ज्वर एक पित्त प्रधान व्याधि है. स्वेदन उपक्रम से आम ज्वर की अवस्था में अवरुद्ध स्रोतक जो होते हैं वो खुल जाते हैं, क्योंकि उष्ण गुण के कारण ये आम दोष का विलयन करता है. दोष चलायमान होकर के कोष्ठ की ओर गति करने लगते हैं. तो इसमें हमें ज्वर रोग में स्वेदन करना चाहिए और मृदु स्वेदन करना चाहिए, विशेषकर निराग्नि स्वेद का प्रयोग करना चाहिए. इसके लिए जैसे निर्वात स्थान में रहना, उष्ण द्रव्यों का लेप करना, उष्ण जलपान एवं वसनाभ जैसे स्वेदन कारक द्रव्यों का आम जल में प्रयोग करना चाहिए. उष्णता काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें स्पेसिफिकली केवल जल को उष्ण करके देख सकते हैं, लेकिन अगर मद्यपान जन्य या पित्त जन्य ज्वर है तो उसमें पित्त रस वाले द्रव्यों से सिद्ध जल को शीतल करके ही देना चाहिए. अर्थात पैथिक ज्वर में संताप, दाह, मोह, अतिसार, विषजन्य ज्वर, मध्य ज्वर, ग्रीष्म ऋतु में, उष्ण में, क्षय में या रक्त पित्त में उष्णोदक का निषेध बताया गया है. तो उष्ण जल अग्निदीपक होता है, कफनाशक होता है, पित्त एवं वात का अनुलोमन करने वाला होता है. इसलिए कफ और वात जन्य ज्वर में ये हितकर माना गया है. आम दोष और क्रोधों का मार्दव कर्म करता है. इसके अतिरिक्त षडंग पानी का प्रयोग बताया गया है. इसको भी हम उष्ण करके दे सकते हैं. षडंग पानी के जो 6 द्रव्य हैं, मुस्तक, पर्पट, उशील, रक्तचंदन, उदीच्य और सौंफ. उदीच्य अर्थात सुगंध वाला. तो इन 6 द्रव्यों से सिद्ध जल को शीतल हो जाने पर इसका हम प्रयोग कर सकते हैं. उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है काल चिकित्सा. काल चिकित्सा का अर्थ यह है कि ज्वर की आमावस्था में किसी भी प्रकार की औषध नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दी हुई औषध पुनः ज्वर को प्रदीप्त कर देती है और शोधन एवं शंशमनीय औषध ज्वर को विषम ज्वर में परिणत कर देती है. इसलिए कहा गया है काल को देखते हुए जब ज्वर की आमावस्था निकल जाए उसके पश्चात ही औषध कर्म करना चाहिए. इसके लिए औषध प्रयोग 7वें, 10वें या 12वें दिन पर बताया गया है.
क्रमशः वात, पित्त और कफ ज्वर में, यानी कि वातित ज्वर में 7वें दिन, कफत ज्वर में, पित्त ज्वर में 10वें दिन और कफ ज्वर में 12वें दिन के पश्चात या 12वें दिन से हमें औषध प्रयोग करना चाहिए। उसके पश्चात जो चौथा पॉइंट है वो है यवागुपान या यवागु चिकित्सा। आम ज्वर या नवीन ज्वर में आम पाचन के लिए लंघन काल जब व्यतीत हो जाए तो दोष अनुसार औषध जल से पकाए हुए मंद यवागु आदि का प्रयोग करना चाहिए। और यवागु का प्रयोग तब तक करना चाहिए जब तक ज्वर मृदु ना हो जाए, अथवा 6 दिन तक हम यवागु का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके बारे में कहा गया है कि यवागु के प्रयोग से जठराग्नि ठीक उसी तरह से प्रज्वलित हो जाती है जिस तरह से लकड़ी के संयोग से अग्नि, अर्थात अग्नि दीपन के लिए यवागु को काफी उपयुक्त बताया गया है ज्वर की चिकित्सा में। तो यवागु से जो हमें मुख्य लाभ होते हैं, लघु होने से जठराग्नि की प्रतिष्ठि हो जाती है, दोष और मलों का अनुलोमन हो जाता है। उसके अतिरिक्त क्योंकि ये द्रव होती है तो ये पिपासा को भी शांत करती है, स्वेद की प्रवृत्ति कराती है और विभिन्न द्रव्यों के संयोग से बनी हुई होती है। तो ये शरीर में बलाधान या बल की वृद्धि भी करती है, शरीर में लघुता उत्पन्न करती है, प्रकृति से जर नाशक भी होती है और ज्वर में सभी प्रकार से साथ में है। तो इसलिए ज्वर में यवागुपान बताया गया है। और किन कंडीशन में हमें यवागुपान नहीं करना चाहिए? यदि ज्वर उन व्यक्ति को हुआ हो जो नित्य मद्यपान करते हो या मदात्य रोग में, यवागु का निषेध बताया गया है। यदि ज्वर ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न हुआ हो तो हमें यवागु नहीं देना है। ज्वर में कफ दोष एवं पित्त दोष की अधिकता होने पर उसके पश्चात यदि ऊर्ध्व में रक्त पित्त है तो उसमें यवागु का प्रयोग हानिकारक होता है। तो ज्वर की अवस्था में यदि मुख से रक्त आता हो तो हमें पहले तर्पण का प्रयोग करना चाहिए, यवागु का नहीं। उसके पश्चात 5वां पॉइंट है पित्त रस चिकित्सा। पित्त रस चिकित्सा में हम अब औषधों का जब प्रयोग करते हैं तो हमें कौन सी औषधें प्रयोग करना चाहिए? तो उसमें ज्वर की चिकित्सा में पित्त शामक औषधियों की आवश्यकता होती है, जो कि मधुर, कषाय, पित्त रस वाले द्रव्य पित्त शामक माने गए हैं। तो ज्वर की चिकित्सा में इन द्रव्यों का प्रयोग जो है बताया गया पित्त शामक चिकित्सा में। परंतु जहाँ हम जानते हैं कि मधुर रस द्रव्य शीत और गुरु होते हैं तो वो दीर्घपाती और आम को बढ़ाने वाले होते हैं। कषाय रस द्रव्य संबंध कर देते हैं, रोग कर सकते हैं। इसलिए ज्वर की आमावस्था में हम जो है इस तरह वाले द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, मधुर और कषाय रस वाले द्रव्यों का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ये द्रव्य स्वभाव से लघु होते हैं और स्रोतोशोधन इनका प्रभाव होता है। तो पित्त रस आम पाचक, अग्निवर्धक, रुचि उत्पन्न करने वाला होता है। कुछ पित्त द्रव्य, ये पित्त औषधि जो आप जानते हैं वो है गुरुचि, पटोल, चिरायता, कुटज, चिरास्तिक आदि। ये सारे पित्त द्रव्य हैं जिनको औषध के रूप में हम ज्वर में प्रयोग करते हैं। 6 दिन का काल जब व्यतीत हो जाता है और रोगी को ज्वर और दोष के विपरीत हम हल्का भोजन करा देते हैं तो अपक्व दोष में पाचन और निराम दोष में क्वाथ का पान करना चाहिए। तो इसके लिए डाइजेस्टिव इनहेंसर्स, अब जो अविपक्व दोष है पित्त रस का प्रयोग औषधों में कर सकते हैं और अविपक्व जो दोष है उनके लिए पाचन विधान के लिए हम डाइजेस्टिव औषधें भी दे सकते हैं। जैसे वार्षिक ज्वर में बृहत पंचमूल से सिद्ध क्वाथ का प्रयोग कर सकते हैं। पैतृक ज्वर में मुस्ता, कुच्ची, इंद्रिय से सिद्ध क्वाथ का प्रयोग कर सकते हैं। कफा ज्वर में पपल्य आदि गण से सिद्ध क्वाथ का प्रयोग कर सकते हैं। नव ज्वर में जो चीजें निषिद्ध बताई गई है वो ये कहा गया है कि कषाय रस से जो भी कषाय या क्वाथ बनाया जाता है वह हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि दोष स्तंभित हो जाते हैं। उसके अलावा तुरंत भोजन करे हुए, जलपान किए हुए, लंघन किए हुए, अजीर्ण, शीर व त्वचा से पीड़ित व्यक्ति को भी पाचन कषाय नहीं देना चाहिए। तो ज्वर चिकित्सा के सिद्धांत में ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है जो इनका ध्यान रखा जाता है। उसके अतिरिक्त पश्चिमान और निदान ज्वर की चिकित्सा भी अलग अलग तरीके से बताई गई है। जैसे कि योग रत्नाकर ने बताया है, ज्वर आदो लंघनम कुर्यात्, ज्वर मध्यतु पाचनम, ज्वरांति रेचनम प्रोक्तम इतत् ज्वर चिकित्सम। अर्थात ज्वर की आदि अवस्था में यानी प्रथम
सबसे प्रथम लंघन कर्म करना चाहिए, ज्वर के मध्य में पाचन कर्म करना चाहिए और ज्वर के अंत में रेचन कर्म करना चाहिए। तो इसके लिए कफ के मंद होने पर या वात पित्त प्रधान ज्वर में दोषों के पूर्ण पक्व हो जाने पर 10 दिन के बाद औषध पित्त ज्वर का प्रयोग भी बताया गया है, जो कि अमृत के समान लाभकारी होता है। तो जब ज्वर में वातादि दोष जितने भी हैं ज्वर की अंतिम अवस्था में जब पक्व हो जाते हैं और वो स्रोत में अगर रुके गए हों तो हम वहां पे विरेचन कर्म या विरेचक औषधियां दे सकते हैं, क्योंकि यदि हम इन दोषों का निर्णय नहीं करेंगे तो शरीर में रुककर अत्यधिक हानि पहुंचाते हैं और जो साधारण ज्वर भी है उसे विषम ज्वर में परिवर्तित कर देते हैं, शरीर का बल क्षीण कर देते हैं। इसलिए ज्वर के अंत में रेचन कर्म या विरेचन कर्म को बताया गया है। तो रेचन कर्म का मतलब विरेचन कर्म ही नहीं, रोगी के बल और बल को देखते हुए वमन कर्म भी कराया जा सकता है और उसके पश्चात आस्थापन व्यक्ति का प्रयोग भी इसमें करवाया जा सकता है। इसके पश्चात धातुगत जड़ों की स्पेसिफिक चिकित्सा जो है बताई गई है, जिसमें रक्तगत होने पर रक्त धातुगत जड़ होने पर वमन कर्म एवं उपवास कराया जाता है। रक्तगत जड़ होने पर परिक्षेप, प्रदेह, संशमन औषध आदि रक्त शामक चिकित्सा की जाती है। यदि ज्वर मांसगत है तो उसमें विरेचन एवं उपवास हितकर माना गया है। मेघ धातुगत ज्वर में विरेचन कर्म एवं उपवास बताया गया है। अस्थि एवं मज्जागत ज्वर में निरु एवं अनुवासन वस्ती का प्रयोग माना गया है। तो ये धातुगत ज्वर की चिकित्सा है। कुछ स्पेसिफिक चिकित्सीय योग है। रस और भस्म जो ज्वर की चिकित्सा में हम प्रयोग कर सकते हैं, उसमें त्रिभुवन कीर्ति रस जो कि बात कफत ज्वर में काफी अच्छा काम करता है। हिंगुलेश्वर रस, लक्ष्मी विलास रस, स्वर्ण मालती बसंत रस, प्रवाल पुष्टि, गुरुचि तत्व, ये सब जो है कंबाइंड फॉर्म में या अलग अलग भी रोग के अनुसार दिए जा सकते हैं। वटियों में संजीवनी वटी, संशमनी वटी, विष्णुमृत वटी, महासुदर्शन घन वटी कुछ वटियां हैं जिनका यूज किया जाता है। चूर्ण जैसे सीतोपलादी चूर्ण, ज्वरहर चूर्ण, सुदर्शन चूर्ण, क्वाथ आशा वरिष्ठ जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पटोल आदि क्वाथ, गोजीबा आदि क्वाथ, कुरुच्चा आदि क्वाथ एवं अमृतारिष्ट। घृत व तेल, चंदन आदि घृत, पंचतिक्त घृत, अमृतादि घृत, ये सभी जो भी घृत हैं ये ज्वर की चिकित्सा में इनका प्रयोग किया जा सकता है। तो ज्वर की चिकित्सा के मुख्य सिद्धांत जो मैंने आज आप सबसे डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया टॉपिक लेंगे